can share my screen. Yeah. So is my screen visible to you all guys? Just is it visible to you all guys? Yes? Fine. Great. So let us begin with our today's class. Okay. So in our last class, मतलब हमारे last class तक हमने CSS का project किया था, right? And from today onwards, we'll be starting with an JavaScript. Okay. So hope so आपको CSS में भी कुछ doubt नहीं होगा, right? And you can able to design as per your मतलब कैसा भी वेबसाइट आप बना सकते हैं as per your choice, right? Okay. So what about Bootstrap? After JavaScript, we'll be learning Bootstrap. Fine. Okay. So fine. So before going ahead, yeah. So we'll be starting with the JavaScript. Fine. So JavaScript is nothing but okay. So हम JavaScript use क्यों करते हैं in a web development? Okay. So HTML, as you all know, it's basically used to this क्या हमारा structure define करने का website का structure define करने के लिए will be using HTML, right? Okay. CSS, why we use it? We use CSS to add styling to our website. Fine. And we use JavaScript to add functionality. What do I mean by the functionality over here is that now at certain point you want to something you want to add some elements, okay, you want to remove some elements, right? Sometime you can just go on other मतलब बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, right? When you click something happens, right? So वो सब किससे possible होता है? Each and everything is been done by using the JavaScript. Whereas आप जब backend में भी move करोगे, where you will be learning Express.js, Node.js, right? What are all this? All these are also the framework, ओके जो हम जावास्क्रिप्ट से ही लिखते हैं, ओके सो लर्निंग जावास्क्रिप्ट इज एन बेस, ओके जहां से आप अपना बैकएंड भी स्टार्ट करोगे. फाइन. सो आप सुने होगे वी आर यूजिंग नोड जेएस इन अ बैकएंड. नोड जेएस इज नथिंग बट एन रन टाइम एनवायरमेंट. ओके रन टाइम एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो हमारे ब्राउजर पे डायरेक्ट रन होता है. ओके अनलाइक लाइक अदर्स, मतलब आप जब पाइथन देखोगे, सी देखोगे, सी प्रोग्रामिंग, सी शार्प देखोगे, राइट, जावा देखोगे, उसके लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है, राइट? Okay, what we do, we go on the online compiler, or we can just download this JDK, right? And later what we do, we just install in our device, okay, and later we use it. But हमारा JavaScript अगर आपको run करना है, okay, you can directly run on the website itself. Okay, how will be doing it, will be seeing in couple of minutes. Fine. So in a short way, अगर मेरे को आपको समझाना होगा जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट से हमारा वेबसाइट का बिहेवियर कैसा करना है डिसाइड कर सकते हैं. ओके टू ऐड फंक्शनैलिटी, ओके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, ओके एंड वो इवेंट हेल्प करके वी कैन मेक अ वेबसाइट डायनामिक. ओके सो बाय लर्निंग द जावास्क्रिप्ट वी कैन एबल टू डू दिस ऑल थिंग. फाइन. वेयर जब आप अपना डेटा को अगर आपको डेटाबेस में भी भेजना है तो आप जावास्क्रिप्ट से उसको फैच करके, फाइन, उसको आप भेज सकते हो. एंड इसको बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको फैच करके आप अपना सर्टन ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. Fine. So I have just opened one this documentation. Okay. So here you can see what it is. JavaScript is first of all the computer programming language, right? So before going ahead, okay, I just want to know क्या हुआ यह कितने लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है? They have learned the programming language before. Yeah, Anurag is here. And the one who are learning for the first time, हाँ एटलीस्ट सी आई जस्ट वांट क्या यहाँ पर जिस हाँ जस्ट वेट द पर्सन हु डोंट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट message in the chat box. Fine. Okay, the one who are really मतलब we can say this fresh and learning the programming language for the first time. Okay, is there anyone who don't have any idea about the programming language? ऐसा कोई है? Now डोंट वरी, अगर हो गए भी देन टू डोंट वरी, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं, ओके फॉर ऑल दैट स्टफ. ओके सो डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, यू आर लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, देन टू डोंट वरी, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड विल बी लर्निंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. ओके सो या लेट्स मूव अहेड नाउ. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूँ. सी व्हेन ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट, राइट, जब हमें बोलना होता है एक दूसरे से तो हम क्या करते हैं, एक हमारा लैंग्वेज होता है, राइट. इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. ओके सो वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, मतलब हमें अगर बात करना होता है तो वी यूज एनी लैंग्वेज, राइट. सिमिलरली
ओके सिमिलरली या नो वरीज प्रणति ओके सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर से बात करना होगा राइट सो कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज 0 and 1 राइट मतलब आप अगर उसके सबसे लोएस्ट लेवल पे जाओगे ना ओके सो क्या होता है हमारा जो भी लैंग्वेज कन्वर्ट होता है ना कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता उनको सिर्फ समझ में आता है 0 and 1 ओके बाइनरी नंबर्स उनको समझ में आते हैं ओके फाइन तो बाइनरी नंबर्स क्या होता है ना बेसिकली हमारा जो कंपाइलर होता है ना वो हमारा मशीन जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है दैट इज दिस विच वन इट इज द बाइनरी लैंग्वेज ओके 0 and 1 के ओके सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ओके जिससे हमें मशीन को समझ में आता है जो हमें बोलना है एंड दे फ्रॉम हियर हमारा मशीन कम्युनिकेट करता है एंड गिव अस द करस्पॉन्डिंग आउटपुट समझ रहे हो फाइन सो इट्स नथिंग बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट जैसा हम हमारा ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ फाइन या जय नो द सी प्लस प्लस नो वरीज फाइन सेम फॉर मैं लर्न सी प्लस प्लस जावा विजुअल बेसिक नो वरीज ग्रेट ओके अगर आपको आता रहेगा सो यू आर इन द प्लस पॉइंट ओके एंड इफ द पर्सन हु डोंट नो ओके डोंट वरी विल बी लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच ओके सो ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए बिकॉज यह इवन मी हम मैंने भी एक पॉइंट पर जाके कौन सा स्टार्ट ही किया होगा राइट सो इवन ह्यूमन यू आर हियर ओके टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइन सो लर्निंग हियर एंड प्रैक्टिसिंग इट डेली इट्स विल दैट विल ब्रिंग मतलब आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग हो जाएगा राइट द पर्सन हु आर हैविंग द नॉलेज ओके प्रीवियस नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको थोड़ा इजी होगा रीजन इजी मतलब उनको सिंटैक्स समझना होगा वेरेज उनको जो लॉजिक होता है वो सब पहले से पता होता है राइट सो फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग कि जिसको अगर पहले से आता होगा उनको थोड़ा इजी रहेगा वेरेज द वन वर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ओके फाइन सो डोंट वरी ओके सो एज आई हैव सेड ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम की यूज करते हैं हमें अगर मशीन से हमारा कंप्यूटर से बात करना होता है राइट तो एज वी यूज इंग्लिश हिंदी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन सिमिलरली अगर हमें मशीन से बात करना होगा राइट सो वी यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज perfect so here we'll be learning our first programming language known as javascript okay so as I have referred this documentation okay so give the general introduction to you what the javascript is and all fine so javascript is an computer language used to make a website and application dynamic and interactive as I have said कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं राइट तो आपको अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट से हम हमारा तीन चीज करते हो तीन चीज क्या करते हैं आप अपडेट करोगे एलिमेंट्स को फाइन एलिमेंट्स के अंदर समझो कौन सा टैक्स लिखा है आपने ओके क्या हाय आई एम सिद्धेश ओके बट एज सुन एज यू लॉग आउट बटन पे क्लिक करोगे वहां से आपका सिद्धेश हटके हम वेलकम यू एज अ गेस्ट लिख के आएगा तो ये सब कैसा पॉसिबल होगा जिस ऑल इज पॉसिबल बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट समझ रहे हो आपको एग्जांपल दिया वेर एज आपको और इंटरेक्टिविटी डालना है अगर आप समझो आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स डालने हैं राइट तो आप एक नंबर डालोगे दूसरा नंबर डालोगे और उसको फिर आप इक्वल्स टू दबाओगे एज सुन एज यू प्रेस द इक्वल्स टू हमें उसका एडिशन मिलके 11 फॉर एग्जांपल 5 एंड 6 आपने नंबर इनपुट किया राइट सो उसका एडिशन मिलके 11 आता है राइट सो ये कैसा आता है दिस ऑल विल बी डूइंग विथ एन हेल्प ऑफ अ जावास्क्रिप्ट फाइन तो हमें फंक्शनैलिटी अगर आपको ऐड करना रहेगा यू वांट टू मेक योर वेबसाइट डायनामिक सो ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट ओके सो आप अपडेट करोगे अपने एलिमेंट्स को यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट जैसे आप टू डू लिस्ट देखे होगे बेसिक एग्जांपल बेसिक प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट क्या होता है जैसे आप कुछ भी अपना टास्क डालते हो राइट एंड आफ्टर दैट टास्क यू जस्ट प्रेस ऑन द बटन ऐड टास्क उसके बाद आपका टास्क वहां पर नीचे दिखने लग जाता है ओके सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन टू डू लिस्ट ओके जहां पर आप अपडेट करते रहते हो और एल्स यू आर एडिंग सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स वेरे जब आप कुछ क्लिक करने के बाद कुछ आपका गायब हो जाता है कौन सा एलिमेंट्स ओके सो दिस is then used where you can update you can add new element you can delete the element by using overall javascript so javascript से आप यही तीन ऑपरेशन करने वाले हो ओके ओवरऑल व्हेन यू विल बी लर्निंग द जावास्क्रिप्ट ओके फ्रंट एंड में इतना ही काम आता है बैक एंड में आप सर्वर बनाते हो राइट यू आपको जब रिक्वेस्ट भेजना होता है टू द सर्वर व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर ये सब आप बैकएंड में यूज करते हो फाइन बट इन द फ्रंट एंड यू मे बेसिकली मेक यूज ऑफ दिस वेर आप क्या करते हो एक सर्टन लेवल आप क्या करते हो उसको अपडेट कर देते हो आप उसको क्या करते हो आप उसको नया एलिमेंट को ऐड करते हो और एल्स यू वांट टू डिलीट सम एग्जिस्टिंग एलिमेंट फाइन इन बेसिक वर्ड आपको मैं ये समझा रहा हूँ ओके सो व्हाट इज बीन सेड कि इट इज यूनिक बिकॉज इट्स रन डायरेक्टली इन योर ब्राउजर जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या आपको कौन सा कंपाइलर कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता राइट ओके ऐसा कुछ डेवलपमेंट किट आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता ओके आपको क्या करना पड़ता है यू जस्ट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ब्राउजर इट कैन बी क्रोम
फाइन, इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट एज, इट कैन बी ब्रेव, अदर थिंग, राइट? तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप कौन सा भी ब्राउजर सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली उसका आउटपुट अपने इसमें देख सकते हो, ब्राउजर के कंसोल में. फाइन. Okay. Similarly, now as they said, along with this HTML and CSS, JavaScript is also the most commonly used programming language on the internet, because today in the on the this internet there is no website who don't have any this JavaScript. JavaScript से मतलब आपको डेटा जो आ रहा है, राइट, वो डेटा आपको कुछ वो डेटा से कुछ काम करना है, राइट? व्हेन द यूजर लॉग इन, आप उसको क्या करते हो, आप उसको डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो वो कैसा स्टोर करोगे? ओके, बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट. Got it? So yeah, that's it been said. Kya most of the website available today are using the JavaScript as well. Okay. In fact, you can see the 98.4% of the website uses JavaScript. Why is it so? Why is it so? Because आपने देखा रहेगा ब्लॉगर्स लोग होते हैं, ओके, वहां पर कुछ इंटरेक्टिव डेटा, मतलब ऐसा इंटरेक्ट करने वाला कुछ ये नहीं होता. फॉर दैट रीजन यू कैन सी के 1.6% ऑफ द वेबसाइट डोंट यूज जावास्क्रिप्ट, बिकॉज वहां पर कुछ इंटरेक्शन के लिए नहीं होता. व्हेन द ब्लॉगर्स डू व्हाट दे जस्ट प्रोवाइड some type of basic information to us, right? So basic information के लिए we will just require HTML and CSS, right? Okay, for that concern वहां पर क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट हम यूज नहीं करते. समझ रहे हो? Okay, so in this JavaScript, CSS and HTML work together to make a this user interface more dynamic and functional. Fine. Okay, so I guess कि आपको थोड़ा एक overview मिल गया होगा what is JavaScript and all. Okay, and JavaScript was introduced in an year 1990. See, here you can see the website. Okay, your website consists of HTML, CSS and JavaScript. HTML से हम क्या करते हैं? What do you want on your website? मतलब it can be image, it can be paragraph tag, it can be heading, right? एंड CSS हम क्या डिसाइड करते हैं, हाउ डू यू वांट इट टू लुक. ओके, जैसा मैं आपको बताया था, if there is a block element, two block element, but if I want to place side by side, right? So हम CSS का यूज करके we can place them side by side, right? And JavaScript से what it is, what do you want it to do. Okay, similarly जब आप क्लिक करने के बाद उसका आपको कुछ करना है, right? So for that reason we'll be using the JavaScript, right? We'll be adding some type of functionality by using the JavaScript. Got it? Now here the history of it, क्या JavaScript कब आया था and all that stuff. Okay, but in our today's this we'll be learning the ES6, JavaScript ES6. What do I mean by the ES6? ES6 is nothing but ECMAScript. Okay, ECMAScript क्या होता है? बेसिकली ना एक सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल्स है वहां पर ना. ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव टू फॉलो सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल. वो तो आपको सबको ही पता है, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट्स ऑफ रूल, राइट? वो आपको फॉलो करना होता है. ओके, so similarly जो JS है, that is JavaScript, it implements ECMAScript. implement ECMAScript specification, उसका मतलब क्या होता है? जो JavaScript है ना, वो कौन से सेट्स ऑफ रूल को फॉलो करता है? ES. ओके, सो ES सेट्स फॉर ECMAScript. ECMAScript अभी आप समझो एक कौन सा ये है, this that has defined the certain sets of rule for the programming language. So for that concern हमारा JavaScript किसको फॉलो करता है? We are has been following our ES, this ECMAScript. Okay, and in our today's मतलब हम हमारा for this course we'll be learning the latest one, that is ES6. Fine, so we are be learning the JavaScript ES6 version. Okay, that is the 6th edition. Fine. Okay, so we'll be learning this ES6 version which was introduced in an year 2015. Okay, यहाँ पर अभी certain changes आ गए, मतलब 6 में हमारे पास 6.1, 6.1.1 and so on आ रहा है. ओके, बट हमारा जो बेस है, बेस इज बिन 6. ओके, तो हमारे पास 6 के अंदर ही हम अभी चल रहे हैं. ओके, फॉर दैट कंसर्न वी आर बी लर्निंग द जावास्क्रिप्ट ES6. फाइन. सो आई गेस कि आपको थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई विल बी यूजिंग द जावास्क्रिप्ट. यस गाइस. ओके, अगर आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो यू कैन डायरेक्टली गो ऑन द वेबसाइट, राइट? ओके, एंड यू कैन जस्ट रिफर द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, फाइन, इफ यू वांट टू रीड द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. Yes, so I guess आपको थोड़ा basic introduction मिल गया होगा what is JavaScript and all. Yeah, fine. So let us move ahead now. Okay, let us see the basic concept that we'll be doing in our today's classes. First one we'll be learning क्या हमारे इसमें how can we include the JavaScript? How can we include the JavaScript? Second one is what's variables. What's gone here? Yeah, what's our variables, right? Then third one is data types. कितने types के हो गए यहाँ पर? Okay, data types क्या होते हैं? We'll be learning all that stuff. Then fourth one we'll be learning conditional statement for today. Okay, we'll be learning our first conditional statement. What are the conditional statement? And fifth one is operators.
We will be learning the operators. Fine. So in our today's class, we have been got this many of the thing that we'll be doing. Okay, the first one that will be how can we include the JavaScript in a document. Okay, then later we'll be seeing what are variables. Then later we'll be seeing data types kya hote hain, everything. Okay, then we'll be seeing conditional statement and operators. Fine. So yes, yes guys, should we move ahead now? Yes. Yes, sir. Yeah. Great. Thank you so much for your response. Okay, so what you can do, we can just open this folder here and we can create new folder here and we can name it as JS day one. Fine, and let us open this with a VS Code. Okay, so first of all, how can we include the JavaScript in a document? Okay, so हम क्या करते हैं, हमारा एक index.html पेज बनाते हैं यहाँ पर, right? Similarly now, okay, it's been taking some time. Yeah, good. Let us close this. Let us zoom our screen. This is a boilerplate. I can just write JS day one. Fine. Now I can write here H1 welcome to JS class 1. Fine. Okay, let us open this with a live server. Okay. Okay, here we have got the output, right? Now let us do and see the how can we include the JavaScript in a document. Okay, so there are two ways. Okay, that can मतलब हम उसको implement कर सकते हैं हमारे document में. The first way is डायरेक्टली आप आपके HTML पेज पर ही आप अपना JavaScript लिख सकते हो. ओके, एंड उसको लिखने के लिए आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होता है, दैट इज दिस वन. ओके, इसके बाद अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. ओके, सो नाउ आई हैव बीन राइटिंग दिस टैग, यू कैन राइट एनीवेयर. ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपको बॉडी टैग के पहला ही लिखना है, बट फॉर द बेस्ट कंसर्न आपका पहला कहीं भी आपका फाइल स्ट्रक्चरिंग कैसा फॉलो होता है, आपका CSS अलग होता है. सिमिलरली आपका क्या होता है, आपका जावास्क्रिप्ट भी अलग इस पे फाइल में होता है, राइट? एंड वो फाइल का आप अटैच कहाँ करते हो, आपके बॉडी टैग क्लोज होने के पहला. समझ रहे हो, आपका बॉडी टैग है ना, उसको क्लोज होने के पहला, बिकॉज जब आपका वेबसाइट लोड होता है तो पहला आपका स्ट्रक्चर लोड होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका क्या लोड होना चाहिए, डेट इज योर स्टाइलिंग, ईच एंड एवरी स्टाइलिंग, एंड उसके बाद आपका फंक्शनलिटी लोड होना चाहिए. फॉर दैट कंसर्न हम क्या करते हैं, पहला हमारा पूरा वेब HTML लोड करवाते हैं, उसके बाद वंस इट इज बीन लोडेड हमारा बॉडी टैग खत्म होने के पहला हम उसको हमारा जावास्क्रिप्ट के फाइल को अटैच करते हैं. तो हम हमारा जो CSS लिंक करते हैं हमारे हेड टैग के अंदर, राइट? बिकॉज हमें क्या चाहिए, HTML और CSS एक साथ अप्लाई होना चाहिए, सो हमारा वेबसाइट अच्छा दिखेगा. फॉर दैट कंसर्न हम उसको किधर इंक्लूड करते हैं, हमारे हेड टैग के अंदर. बट इट इज लाइक दैट कि आपका अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी आपको हेड टैग के अंदर इंक्लूड करना है, आप इंक्लूड कर सकते हो, बट आपका वो थर्ड प्रायोरिटी रहता है. फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी इज दैट आपका वेबसाइट पर आपका HTML एंड CSS पहला दिखना चाहिए यूजर को, बिकॉज यूजर डायरेक्टली ओपन करने के बाद डायरेक्ट इंटरेक्टिव नहीं होता, राइट? इट विल हैव सम टाइम ऑफ टाइम. ओके, 10 to 15 सेकंड ऑफ टाइम. ओके, फिर उसके बाद वो इंटरेक्ट करता है, राइट? एंड इन अ couple of second, that is 1 to 2 seconds के बाद हमारा JavaScript implement हो जाता है. Okay, for that concern the best advice is to use your JavaScript before closing of a body tag. Okay, now I've been writing here script. Okay, इस script tag के अंदर अगर आपको इंटरनल मतलब आपको इंटरनल डॉक्यूमेंट में अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है, ओके, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में आप अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. जावा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आई मीन आपको एक फाइल बनाना है जावास्क्रिप्ट का, और उसको वो फाइल में आपका जावास्क्रिप्ट लिखना है. ओके, बट मैं आपको एक पहला वे बता रहा हूँ, दैट इज इंटरनल डॉक्यूमेंट. इंटरनल डॉक्यूमेंट मतलब आपको वही डॉक्यूमेंट में आपका जावास्क्रिप्ट लिखना है. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको इंटरनल डॉक्यूमेंट में आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको किसके अंदर लिखना होगा, आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर. ओके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट. Okay, and I am be writing hello users, right? And let me save this and you can see हमें इधर कुछ एक अलर्ट मिल रहा है, right? As soon as I click this, देख हमारा ये वेबसाइट ये होगा. समझ रहे हो? ओके, सो यहाँ पर इट्स मीन कि हमारा व्हाट इज दिस लाइन, डोंट वरी, हम देखेंगे व्हाट इज दिस अलर्ट एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, बट यहाँ पर यू कैन सी कि हमारा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट? सिमिलरली आप इसको कहाँ पर भी अप्लाई लिख सकते हो, यू कैन राइट before closing of this head tag, right? See if I write it over here, see अभी भी अप्लाई हुआ है. समझ रहे हो? Okay, so this is a one way where you can include the JavaScript, that is the internal document internally, okay, within your document itself.
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे जहां आप जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली HTML के साथ लिख सकते हो। ओके, जस्ट आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना है, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको डायरेक्टली लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग बनाया तो यहाँ पर नहीं बना सकते, यहाँ पर भी आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पर भी हम अलर्ट करते हैं, हाय गाइस, समझ रहे हो? तो हमें पहले ये अलर्ट आएगा, फिर इसके बाद ये अलर्ट आएगा। लेट्स गो एंड सी इट। ओके, हेलो यूजर्स, हाय गाइस, गॉट इट? समझ रहे हो? तो ऐसा आप कितना भी स्क्रिप्ट टैग बना सकते हो, बट ऑलवेज प्रिफरेबल कि आप अपना एक नया एक इसका बनाओ, मतलब अपना एक जावास्क्रिप्ट का एक अलग फाइल बनाओ, वहां पर अपना जावास्क्रिप्ट लिखो। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट वे where you can include the javascript. Okay, what is this? Is nothing but I've just shown you कि हमारा javascript काम कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हो? ओके, इफ आई डू console.log, जहां पर मैं आपको बोल रहा था, ओके, आई वाज सेइंग कि इसको मैं कमेंट आउट करता अभी के लिए, राइट? आई वाज सेइंग कि हमारा जो भी जीएस का मतलब जावास्क्रिप्ट का आउटपुट है, हम डायरेक्टली उसको हमारे ब्राउजर पे देख सकते हैं, राइट? आई हैव जस्ट सेड console.log hello users। अभी किधर दिखेगा? लेट्स गो एंड से इट। व्हाई हैज इट बीन वर्किंग? या लेट्स से दिस। ओके, पहले का है, या लेट्स रिफ्रेश अप पेज। देखो अभी हमारे पास अलर्ट नहीं आया, सी रिफ्रेश अप पेज आया है, वेयर एज हमारा ये आउटपुट अभी किधर दिखेगा? ओके, सी अगर ये आपको आउटपुट देखना है तो आपके ब्राउजर पे जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन दिस ब्राउजर, ओके, देन इंस्पेक्ट, गो ऑन द इंस्पेक्ट। यहाँ पर लेट मी, कंसोल आपको दिखेगा, समझ रहे हो? ये कंसोल में देखो, you have got this text hello users, got it? So this way आप डायरेक्टली आपका अगर आपको ये करना है, fine, if I write 5 plus 6 over here, if I want to know the addition of two numbers, okay, I 5 plus 6, right? So output would be 11। let's go and see 11 आ रहा है कैसे? we have got the output directly over here, राइट? तो सिमिलर जैसा अगर आप पाइथन आप यूज करते होगे, या तो सी प्रोग्राम यूज करते होगे, जावा यूज करते होगे, राइट, सी शार्प यूज करते होगे, रबी यूज करते हो, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, आपको एक कुछ ये इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? मतलब एक आपको उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट, फॉर योर डिवाइस, ऑन योर डिवाइस वी वांट टू रन इट। ओके, वेयर अगर आपको उसको रन करना होगा इंटरनेट पर, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट गो ऑन द कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, राइट, एंड यू जस्ट गो एंड सी द आउटपुट। वेयर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखना है, तो यू जस्ट डोंट वांट टू यू डोंट वांट टू इंस्टॉल एनीथिंग, आप डायरेक्टली उसको ब्राउजर में भी देख सकते हो। ओके, सो दिस इज अ वन वे वेर आई हैव शोन यू कि आप इंटरनल इंटरनल विद इन एन डॉक्यूमेंट आप अपना जावास्क्रिप्ट पैसा लिख सकते हो, समझ रहे हो? नाउ द सेकेंड वे आई बी शोइंग विच इज अ प्रीफर्ड वन, ओके, जहां पर आपको एडवाइजेबल भी होता है कि आप क्या करते हो, आप अलग अलग आपका फाइल बनाओ। ओके, सो लेट मी, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट रिमूविंग ऑल दिस नाउ। यस, ओके, सो हमने क्या किया, एक फाइल बनाएगा। ओके, एंड नाउ जैसा हमारा HTML का फाइल से हम कभी भी उसको, जो हमारा दिस होता है, मतलब एंड, यू ऑलवेज एंड इट विद डॉट HTML, राइट, एक्सटेंशन। ओके, सिमिलरली आप जब CSS लिखते थे तो आपका जो भी फाइल का एंडिंग था, इट वाज डॉट CSS। सिमिलरली जब आप जावास्क्रिप्ट का बनाओगे, सो इट विल ऑलवेज एंड विद डॉट JS। ओके, सो आई विल से index.js फॉर्म। ओके, सो डॉट JS लगाने से you can get to know कि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल। okay, so if I write now alert, okay, I write hello this guys, okay, let me save it and run it। will I be getting output? यहाँ तक तो कुछ आएगा ही नहीं, बिकॉज कंसोल हमने किया ही नहीं, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीलोड द पेज, वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट। रीजन बिहाइंड दिस इज, हमने फाइल तो बना दी है, बट हमने उसको लिंक नहीं किया, जैसे हम हमारा CSS को लिंक करते थे, राइट? ना उसको अगर आपको लिंक करना होगा तो आप हेड टैग के अंदर भी आप इसको लिंक कर सकते हो, किधर भी आपको लिंक कर, आप इसको लिंक कर सकते हो। बट मैं आपको क्या बोला, प्रीफर्ड वे इज आपका बॉडी टैग क्लोज होने के पहले आप उसको लिंक करो। ओके, तो आप कैसा लिंक कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग लिखो, सॉरी, स्क्रिप्ट टैग, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको उसका सोर्स देना होता है, सोर्स में उसका पाथ, तो डॉट स्लैश, जैसा आप आपका HREF लिखने के लिंक, मतलब CSS के लिए वही सेम वे में आपको SRC लिख के आपका जावास्क्रिप्ट का ये मतलब आपका फाइल अटैच करना है, राइट? आई विल से डॉट स्लैश index.js, right? Let me save my file, and now you can see we will getting some output. Yes, we have got a alert over here, right? So this is the two basic way where we can include JavaScript
for our document. Okay, the first one which was internal document and the मतलब हम हमारे internally वो use कर रहे थे, right? And the second way was हम हमारा external एक JavaScript फाइल बना रहे और उसको just we are linking it, right? अगर आपको मैं यहाँ पर भी उसको head tag के अंदर भी उसको link करेंगे then तो हमारा JavaScript रन होगा, सी हो रहा है रन, समझ रहे हो? so आप उसको किधर भी लिंक कर सकते हो, राइट? बट एडवाइजेबल क्या होता है, ऑलवेज यूज बिफोर द बॉडी टैग, समझ रहे हो? ओके, so have everyone got it? What are the two ways how can we this include a JavaScript for a document? Yes, सबको समझा है अच्छे से? Yes, sir. या ग्रेट. ओके, थोड़े दिन बेसिक चलेगा. ओके, उसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट्स एरे सब देखेंगे. होप सो बाय टुमारो और बाय मंडे. फाइन. सो द वन हुआ मतलब जिसको पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, सो डोंट गेट बोर्ड ऑफ. फाइन. ओके, we'll be learning slowly and gradually. मैं directly move on भी नहीं कर सकता because there are students who don't might be not knowing anything. For that concern, I will be going from scratch. Okay, guys. So we'll be learning now. We have seen how can we include the this मतलब हमारा JavaScript file. Okay, now second thing we'll be learning over here variables. Okay, what are variables over here? Let's go and say it. Okay, so आपको पता है, okay, we all know it कि हमारे में इसमें कंप्यूटर के अंदर we have memory. Right, so memory के अंदर we have we have different type of this, right? Blocks होते हैं, right? वो blocks के अंदर हमारा data store होता है. Okay, so if I write let age equals to 18, what do I mean by this? Okay, if I say let age equals to 18, वो क्या होता है? I will make you understand now. Okay, समझो ये आपका memory, बहुत बड़ा ही बना दिया but fine. Okay, now हाँ, यहाँ से इसको मैं ए कर दिया हूँ. फाइन, इसको मैं इधर कमेंट आउट करता हूँ. आई राइट लेट एज इक्वल्स टू सॉरी 18. ओके, इसका मतलब क्या है? ओके, फर्स्ट वी आर सेइंग वेरिएबल्स. फाइन, व्हाट आर वेरिएबल्स? फाइन. ओके, सो ये आपके अगर मैं ऐसा बोलूंगा लेट्स एज इक्वल्स टू 18, इसका मतलब क्या होता है? जब आपके मेमोरी में कैसा स्टोर होगा मैं आपको बताता हूँ. ओके, सो जब मैं उसको बोलूंगा लेट एज इक्वल्स टू 18, तब जो आपका कंप्यूटर में जो मेमोरी होगा वहां पर एक आपका 18 नंबर स्टोर हो जाएगा. समझ रहे हो? आपका क्या स्टोर हो जाएगा? एक 18 नंबर स्टोर हो जाएगा. ओके, और वो जो आपका ब्लॉक है उसको आपका नाम आ जाएगा एज. ओके, नाउ इफ आई राइट लेट लेट नेम इक्वल्स टू सिद्धेश. ओके, आई हैव रोट लेट्स नेम इक्वल्स टू सिद्धेश. आपके मेमोरी में अभी क्या होगा? किधर भी. इट्स नॉट लाइक कि आपका इसके बाद ही स्टोर होगा, नहीं, आपका किधर भी स्टोर हो सकता है. ऐसा नहीं कि आपका 1 by 1 ही होगा. इट्स नॉट लाइक इफ आई यहाँ पर अभी सिद्धेश आपका स्टोर हो गया. ओके, सो यहाँ पर अभी इसका वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम ये है नेम. जो लेफ्ट साइड होता है ना, आपका वेरिएबल का नाम होता है, उसके बाद आपका उसका वैल्यू होता है. ओके, वो वैल्यू हमारे ब्लॉक मतलब आपके मेमोरी में स्टोर होता है. वो जो आपका मेमोरी का लोकेशन है उसको हम बोलते हैं मेमोरी. मतलब आपका जो वेरिएबल है इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ मेमोरी लोकेशन. ओके, इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट टाइप ऑफ योर मेमोरी लोकेशन. समझ रहे हो? ओके, सो आपके मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्या होता है? जस्ट नथिंग बट योर मेमोरी लोकेशन, जहां पर आपका डेटा स्टोर हो. ओके, सो मैंने क्या बोला था? नेम इक्वल्स टू सिद्धेश. तो ये आपका मेमोरी लोकेशन है नेम. ओके, जहां पर आपका वैल्यू क्या स्टोर है? सिद्धेश. सिमिलरली जब मैं बोलूंगा लेट एज इक्वल्स टू 18, तो एज इज अ मेमोरी लोकेशन. सिमिलरली जब आपका समझो आपके एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्ल्स होते हैं, मींस नॉट इन गर्ल्स, सॉरी माय बैड, हाउस होते हैं, राइट? होम, हाउसेस, राइट? वहां पर भी ईच एंड एवरी हाउस हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ एड्रेस. ओके, सो इट्स नथिंग बट वन टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस. ओके, हमारे मेमोरी के अंदर भी इट्स लाइक समझो ये आपका पूरा एरिया है और इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे घर से, राइट? एंड हर एक घर के हमारे पास एड्रेस होते हैं. ओके, सो एड्रेस से हमें समझ में आता है कि ये एड्रेस पर वी हैव गॉट दिस हाउस. सिमिलरली वो एड्रेस पर वी हैव गॉट दैट हाउस. सिमिलरली हमें अगर पॉइंट आउट करना है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें वेरिएबल्स हेल्प करता है. ओके, टू पॉइंट समथिंग इन अ मेमोरी. ओके, तो हमारे वेरिएबल्स के यूज करके हम हमारे मेमोरी के अंदर का डेटा को फेच करते हैं. समझ रहे हो? तो इफ आई राइट एज इक्वल्स टू 18, ओके, दिस इज अ वे where how you can define your variables. Okay, so this is your one way. Similarly आपके पास अगर आप लिखोगे where, now if I write where, what I can write where this,
country, okay, equals to India, right? If I write my where country equals to area, this is another way. ये आप जब आप ES6 के पहला मतलब ES5, ES4, ES3, ES2, ES1 वहां पर जब आप वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते थे तब आप कौन सा वर्ड यूज करते थे? दिस इज नथिंग बट योर कीवर्ड्स, ओके, जहां पर आपको ये स्पेसिफाई करके आप बता रहे हो कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, समझ रहे हो? बट ES6 में हमारे पास एक नया अपडेट आया जहां पर हम हमें अभी हमारा जो अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो आप लेट कीवर्ड से भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो या फिर आप वेयर कीवर्ड से भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। बट अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो यू कैन यूज लेट, वेयर एज यू कैन ऑल्सो यूज वेयर एज वेल, ओके। वेयर एज आपके पास और एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होना चाहिए फॉर मतलब आपको समझो आप जब लॉग इन करते हो तब आपका नेम कभी चेंज नहीं होगा, राइट? ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे का नाम चेंज होगा कभी आफ्टर लॉगिंग? नो, राइट। सो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज पहले से हमने नेम को डिफाइन करके रखा था, राइट? इफ आई राइट यूजर नेम, so it's different, okay, because this is one name of a variable, okay. So ऐसा आपको जब यूज करना है, मतलब आपको ऐसा चीज चाहिए या तो आप ऐसा डेटा ले रहे हो जो कभी आपके पूरे इसमें चेंज ही नहीं होने वाला, ड्यूरिंग दैट टाइम आप उसको किससे डिक्लेयर कर सकते हैं? कॉन्स्ट, ओके। वेयर जब आप लेट और वेयर यूज करोगे वहां पर आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो, ओके। सो वेरिएबल्स आपको समझा, इट्स नथिंग बट इट्स अ मेमोरी लोकेशन, ओके, in a memory, okay. So variable is nothing but is type of one, but it's a memory location inside a memory, okay. So I can say it's okay, it's a memory inside memory, what is a memory location inside a memory, फाइन। ये तो आपको समझे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका डिफाइन कैसे कर सकते हो? आपको पहला कीवर्ड यूज करना होता है लेट, वेयर, ओके। उसके बाद आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट आपको कब यूज करना है? वो आपको डेटा को कभी अपडेट ही नहीं करना है, ओके। पूरा लाइफ टाइम तक अगर आपको वो डेटा को कभी अपडेट नहीं करना है तब आप उसको कॉन्स्ट से यूज कर सकते हो, ओके, फाइन। बिकॉज वो डिक्लेयर हो गया तो आप उसको कभी अपडेट नहीं कर सकते। बट आपका ऐसा चाहिए जो वेरिएबल, अभी समझो एज है, एज अभी 1 साल के बाद बंदे का एज हो जाएगा 19, राइट? द पर्सन एज विल बी चेंज टू 19, राइट? सो फॉर दैट कंसर्न हम उसको वेरिएबल में कौन से इसमें डिफाइन किया? लेट, और एल्स यू कैन आल्सो डिफाइन इट बाय वेयर एज वेल, समझ लो। जब फॉर एग्जांपल नाउ द पर्सन इज लिविंग इन द कंट्री इंडिया, बट in few years the person will be shifting over, okay, and he will be this okay, migrating in UK, fine। for that concern हम उसको किधर स्टोर किया है? in a keyword where, or we can use the let as well, okay। so these are the basic way how you can declare your variable. You can use the let, ओके। जैसा आप जावा फॉर एग्जांपल अगर आप जावा सीखते होगे तो वहां पर आप इंट यूज करते हो, राइट, ओके, फॉर डिक्लेयरिंग नंबर टाइप ऑफ दिस डेटा। वेरे जब आप पाइथन यूज करोगे तो वहां पर आप एक डेटा टाइप यूज करते हो, ओके। इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंट, ओके, इट कैन बी बुलियन एंड अदर स्टफ, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, ओके। आप डायरेक्टली कौन सा भी डेटा टाइप यूज स्टोर कर सकते हो विद इन दिस लेट, ओके। बिकॉज हियर यू कैन सी आई हैव स्टोर्ड इनसाइड दिस डबल कोट्स। डबल कोट्स मतलब अगर आपको कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब ये देखो एक एक जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उसको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, ओके। एंड उसको हम बहुत सारे कैरेक्टर को हम जोड़ के क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग, ओके। सो हियर यू कैन सी इट्स एंड व्हाट वी कैन से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। कैरेक्टर्स इज नथिंग बट अगर मैं ए लिखूंगा ये कैरेक्टर्स हो गए, बी हो गया कैरेक्टर हो गया, सी हो गया, एंड मैं इसको कंबाइन कर दिया, ओके, एबीसी, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रिंग बन गया, ओके। समझ रहे हो? तो स्ट्रिंग को आप हमेशा किसमें लिखोगे? इनसाइड द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ओके। ऐसा आपको कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको सिंगल कोट्स में लिखना है क्या डबल कोट्स में लिखना है, इट्स योर चॉइस, बिकॉज हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इतने सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, ओके। इट्स फ्री, लाइक जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल आप जावा का सीखते होगे, राइट? तो जावा में यू माइट बी हैविंग क्या, वहां पर हम सिंगल कोट यूज नहीं करते, वी जस्ट इंक्लूड डबल कोट्स, समझ रहे हो? सो यहाँ पर वी कैन इंक्लूड डबल कोट, सिंगल कोट एज वेल एज डबल कोट्स, ओके। सो दीस आर द थ्री वेज where you can define the variables, okay। now let me make you the understand कि इसमें डिफरेंस क्या है where and let में, okay। so मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ, okay। now I will make you understand the difference between let and where keyword, okay। now I have said let age equals to 20, ओके। अगर मेरे को इसको अपडेट करना होगा तो मैं डायरेक्टली एज इक्वल्स 21 कर दूंगा तो हमारा एज अभी अपडेट हो जाएगा, देखना है आपको।
सो अगर मैं इसके बाद अलर्ट कर दूंगा, ओके, इधर ही अलर्ट करता हूँ, अपडेट करने के बाद मैं उसको अलर्ट करता हूँ, समझ रहे हो? तो अगर अलर्ट करने के बाद अगर मैं देखूंगा, इट वुड बी ओवर हियर, राइट? तो मुझे 21 है बिकॉज हमारा अभी अपडेट हो गया, समझ रहे हो? बट अगर मैं इसको करूंगा वेर एज इक्वल्स टू 21, तो मैं क्या कर रहा, पहले से हमारा, देखो समझो, पहले से हमारा एज को तो मैंने डिफाइन करके रखा हो, राइट? बट मैं उसको वापस रीडिफाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको वापस जाके बोल रहा हूँ क्या, वापस एक नया वेरिएबल नहीं है बट सेम वेरिएबल है, ओके, हम उसको अपडेट कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये आपका पॉसिबल नहीं होगा when we use let कीवर्ड, ओके, बट यहाँ पर अगर मैं वापस उसको रीडिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एरर नहीं देगा, ओके, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट, कुछ एरर आ रहा है क्या? देखो हाँ, यहाँ पर हमें डायरेक्टली आउटपुट मिल रहा है, राइट? ओके, फाइन, बट इफ आई यूज लेट कीवर्ड, ओके, आई यूज द लेट कीवर्ड ओवर हियर, यहाँ पर हमें कुछ एरर दिख रहा है, रीजन बिहाइंड दिस इज, देखो, कैनॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप, ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स, ओके, व्हाट इज बीन सेइंग कि हमें वापस को रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, अगर मैं इसको आपको आउट इसका ये देख रहा है, अगर हमें तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, देखो सेव करता हूँ, कुछ आउटपुट ही नहीं दिखेगा बिकॉज वो वर्क ही नहीं होगा, समझ रहे हो? गॉट इट? ओके, एंड अगर आपको उसका एरर देखना है ना, तो आप ऑलवेज डू कंसोल डॉट लॉग, तो आपको कंसोल में आपको एरर दिखेगा, क्यों उसका आउटपुट नहीं दिखा है, जस्ट गो ऑन द कंसोल, यहाँ पर क्या दिख रहा है, identifier age is one type of variable, right, has been already been declared, okay, so here you can see, sorry, here you can see it's been already been declared, तो हम क्या करें, इसको अपडेट करना है, तो आपको उसको लेट कीवर्ड नहीं यूज करना, डायरेक्टली आप अपडेट करो, अभी हमें कुछ भी एरर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर 21 आ गया, ओके। सो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या दिखा, हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रिडिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, राइट, एंड द सेकंड डिफरेंस इज, फर्स्ट डिफरेंस वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं बट हम लेट कीवर्ड्स को, मतलब वेर कीवर्ड यूज करोगे तो आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो? रीडिक्लेयर इज नॉट पॉसिबल, ओके, समझ रहे हो? दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, यस, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आपको क्या समझाता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ, मैं कर रहा हूँ एज इक्वल्स टू, और एल्स मैं डायरेक्टली उसको कंसोल कर देता हूँ, सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज, फाइन, और उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ वेर एज इक्वल्स टू 20, तो हमारा, यू माइट बी अवेयर ऑफ कि हमारा फर्स्ट लाइन से चालू होता रहेगा, फिर 15 लाइन आएगा, तो इसको पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद वो वेर पे ये करेगा, राइट? ओके, लेट्स गो एंड सी हमारे कंसोल में क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब अब तक हमने वो वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, ये एरर नहीं है, ओके, इट्स बीन जस्ट बीन सेइंग क्या वो अभी डिफाइन नहीं है, बट अगर मैं इधर लेट यूज करूंगा तो हमें एरर दिखाएगा, लेट्स से, ओके, अगर मैं यहाँ पर लेट यूज करूंगा तो इधर कुछ एरर दिखाएगा, देखो क्या दिखा रहा है, कैनॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो हमें अब तक इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया है, तो उसके पहले हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओके, वेर जब हमें अनडिफाइन आ रहा था, सो एक वो हमें सिर्फ बता रहा था कि वो एरर नहीं है, एरर आपको रेड इसमें दिख रहा है, राइट? ओके, बट वो अनडिफाइंड मतलब कि आप तक उसको डिफाइन ही नहीं किया हमें, बट उसको हमें एक्सेस करना चाहते हैं, बट वो अब तक डिफाइन ही नहीं हुआ है, ओके, सो ये आउटपुट नहीं, आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ओके, ओके, आपको एक गाइडलाइन दे रहा है, क्या गाइड, मतलब यूजर, मतलब जो एक डेवलपर है उसको एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि अब तक आपने ए को डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो आप उसको आउटपुट कैसा ले सकते हो, आप उसको एक्सेस में और उसको यूज कैसा कर सकते हो, समझ रहे हो? बट आप लेट यूज करोगे तो आपसे क्या होता है, कंस्ट्रेन आ जाता है, ओके, वहां पर डायरेक्टली आपको आउटपुट में एरर दिखता है, उससे हमें समझ में आता है कि एज इज नॉट बीन इनिशियलाइज येट, मतलब अब तक आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, समझ रहे हो? यस, दिस इज अ सेकेंड डिफरेंस, ओके, सो यहाँ पर अभी आप, अपने ऊपर है, आप इसको वेयर भी यूज कर सकते हो, लेट भी यूज कर सकते हो, ओके, बेसिकली डिपेंड ऑन आवर चॉइस, यस। So have everyone got the difference between the this let and where keyword and how can we declare the variables, what are variables, सबको समझा है अच्छे से? Yes. यस सर। It's nothing but and one type of storage location on your, in your this memory. Yes, so we have seen the memory over here, sorry, the variables over here. Now we'll be seeing what are data types, okay, so here you can see हम different types of data store कर रहे हैं, right? So if I write let name equals to Siddesh, right,
then I can say let age equals to 20, and I can say this is he adult. Okay, so I can say let is adult equals to true, right? So I have said is adult, that if the person is adult or not, I have said true. तो बेसिकली हमारे यहाँ पर मतलब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप इज नथिंग बट जो डेटा हम उस पर स्टोर करना चाहते हैं उसका कौन सा टाइप है. ओके, जो हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं ये वेरिएबल में, राइट, नेम इज अ वन वेरिएबल, राइट, इसके अंदर हम डेटा कौन सा स्टोर करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप. तो हमें कौन सा टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका हमें अगर पता मतलब हमें पता करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. फाइन, तो दैट फॉर दैट कंसेप्ट विल बी लर्निंग डेटा टाइप. ओके, सो डेटा टाइप हमारे जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, देन वी हैव बूलियन. ओके, स्ट्रिंग मतलब जैसे आपको बोला, अगर आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब आपको अल्फाबेट ये सब स्टोर करना होगा, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम आप उसको किस में स्टोर करोगे, स्ट्रिंग में स्टोर करते हो. ओके, नंबर्स आपको नंबर से समझ में आया, फॉर एग्जांपल आपको एज स्टोर करना होगा, राइट, अगर आपको फोन नंबर स्टोर करना होगा तो वो सब आप नंबर में स्टोर कर सकते हो. समझ. आप बुलियन क्या होता है, बुलियन एक नया वर्ड है. ओके, सो बुलियन इज नथिंग बट द आंसर इज इधर येस और नो, हमें सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगा. ओके, इट कैन बी ट्रू, फॉल्स, येस, नो, द पर्सन इज एब्सेंट, ही इज प्रेजेंट. ओके, तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो हमें कभी या तो ये होगा या तो वो होगा, बीच में कभी इंटरमीडिएट नहीं होगा, राइट. सो फॉर दैट रीजन हमारे पास होता है बुलियन. ओके, तो इसका बुलियन का हम कब कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन लॉग इन है तो हमें ये वाला कंटेंट इसको बताना है, अगर वो लॉग इन नहीं है तो ये कंटेंट हाइड करना है. समझ रहे हो, तो तब हमें बुलियन यूज करते हैं. ओके, सो उसका आज एग्जांपल भी देखेंगे, वेयर विल बी रनिंग द ऑपरेटर्स एंड ऑल. फाइन, सो ड्यूरिंग दैट विल बी सीइंग द यूज ऑफ दिस बुलियन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग तो सबको पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है. बेसिकली जब आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या तो स्ट्रिंग मतलब आपको नाम वाम स्टोर करना होगा तब आप उसको डबल कोट्स में लिखोगे, राइट, और उसके अंदर आप अपना कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पर मैं सिद्धेश 1 2 3 भी लिख सकता हूँ. समझ रहे हो, डोंट वरी क्या मैं अगर सिर्फ कैरेक्टर ही होगा क्या, नहीं, आपका स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो. ओके, एट द रेट भी लिखूंगा तो भी नो वरीज. समझ रहे हो, एट द रेट भी लिखूंगा, कुछ भी स्पेशल सिंबल भी आप इसको अंदर इंक्लूड कर सकते हो. ओके, देन यू कैन इंक्लूड नंबर एज वेल, मतलब नंबर अगर आपको नंबर ए करना है, ओके, तो आप डायरेक्टली उसको इस पर ये हो जाओगे आपके कौन सा डेटा टाइप में स्टोर होगा, नंबर डेटा टाइप. अगर आपको इसका डेटा टाइप देखना है आउटपुट में तो मैं लिखूंगा console.log type of कौन सा type of name. Okay, I've set a type of this data type that is name. Okay, let me store inside this. Okay, ये आपको ऐसा स्ट्राइक आउट क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ये आपका एक पहले से एक डिफाइन ये है. गॉट इट. नाउ लेट्स गो एंड सी द टाइप ऑफ दिस over the console. Fine, so it would be over here. It's string. ओके, एंड ये स्ट्राइक आउट क्यों हुआ, बिकॉज हमारे पास ना पहले से डिफाइन मतलब एक रिजर्व कीवर्ड होते हैं. समझ रहे हो, जैसा नंबर एक रिजर्व होगा. अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा, नॉट हियर सॉरी, लेट, अगर मैं नेम के जगह लिखूंगा स्ट्रिंग. ओके, एंड यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा HIGH हाई, एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, राइट. सो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ग्रीन में मार्कआउट हो गया. बिकॉज कलर क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज एक पहले से एक डेटा टाइप है. समझ रहे हो, और मैंने इधर वेरिएबल उसको डिफाइन किया. ओके, इफ आई डू द नेम, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं. ओके, अगर आपको रिजर्व कीवर्ड्स देखने हैं, व्हाट आर द रिजर्व कीवर्ड्स इन दिस, जो पहले से हमें रिजर्व करके दिया है, देखो. सो यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स है, राइट. वेयर है, देखो वेयर है, राइट. तो ये सब आप किसमें यूज नहीं कर सकते हो, आपके वेरिएबल नाम रखने के टाइम आप यूज नहीं कर सकते. आप यूज करोगे तब आपको कुछ एरर्स आएगा या तो वो वर्क नहीं करेगा. समझ रहे हो, तो कुछ टाइप ऑफ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं. ओके, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपको जानना ही है. ओके, बट अगर आपको पता होगा तो इट्स वेल एंड गुड. ओके, तो फॉर दैट कंसर्न हमें ये नेम जब हम यूज किए थे, राइट, तो हमें ये स्ट्राइक आउट मिला था. ओके, तो अगर आपको टाइप ऑफ डेटा देखना है, कौन सा टाइप ऑफ डेटा ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है, okay, during that time you can just use this over here and you can just get the output over here. Okay, if I do age over here,
फाइन, तो अभी स्ट्राइक आउट नहीं हुआ बिकॉज ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है, राइट? ओके, सिमिलरली इफ आई डू is is sorry is adult. ओके लेट्स सी, तो पहला हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा बिकॉज इसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है, नंबर आएगा, फिर आएगा हमारा दैट इज द दिस वन बुलियन। ओके बिकॉज थ्रू यहाँ पर देखो मैंने थ्रू ये इसमें नहीं स्टोर किया है, ओके ऐसा नहीं स्टोर किया है, ऐसा स्टोर करोगे तो उसका मतलब है आपका क्या है, इट्स दिस वन, दैट इज इट्स अ स्ट्रिंग। ओके लेट्स गो एंड सी, अगर मैंने इसको डबल कोट्स में लिखूंगा तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा, सी स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग। ओके ये आपका इग्नोर करो, फाइन, स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग, बिकॉज लास्ट में स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने उसको डबल कोट्स में लिखा है। ओके वेयर अगर मैं नॉर्मल इसमें लिखूंगा तो इट्स बुलियन, राइट, समझा आपको? ओके नाउ अगर आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो, when you want to convert the one data type into another we can convert that as well. Okay, so for now let us understand कि ये आपका कौन सा डेटा टाइप है, it's a this one string. Okay, but if I want to convert it to the number, okay, and else if you want to convert it into the boolean, how can we convert it? Okay, so conversion हम देखते हैं अभी। and if I want to convert one data type into another, now output क्या आएगा, इसका string आएगा, but मुझे इसको convert करना है into number, तो I can say let, इसको मैं एक variable में store कर देता हूँ, okay, and I want to convert it into number, तो मैं लिखूंगा number, and किसको आपको convert करना है, मुझे name को convert करना है, okay, and अगर मैं इसको अभी console.log टाइप करूँ तो इसका आप देखोगे डेटा टाइप क्या होगा, दिस दैट इज टाइप। ओके तो मैंने क्या किया अभी देखो, समझो पहला, लेट टाइप एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इसके अंदर मैंने हमारा जो नाम है उसको नंबर में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया, उसको फिर मैं अभी कंसोल क्या करूंगा, कंसोल टाइप ऑफ टाइप करता, तो उसका मुझे डेटा टाइप मिलेगा। तो पहला तो स्ट्रिंग आएगा, इसका हम देखते हैं डेटा टाइप नंबर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हमारा, उसके नीचे का देखो, वी हैव गॉट इट इन द नंबर। ओके सिमिलरली अगर आपको उसको बुलियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या लिखोगे इसके आगे, बुलियन, समझ रहे हो, तो अभी आपका जो भी ये डेटा टाइप है इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू बुलियन। ओके this is a conversion of string to this one, right, number and boolean. Okay let me comment this out. Okay now if you want to convert the number data type of number to string and boolean, you can do the same way. Okay so if I do let age equals to 20, right, I will do the console.log the type of what I'm saying, the type of, I'm saying the type of age, it would be what, it would be number. Yes now I'm converting into some other thing and been storing it in one variable type. Okay so I want to convert it into the string, so I'm set that it should be converted into string, right, and उसके बाद मैंने क्या किया, उसको कौन से नंबर आपको कौन सा डेटा को स्टोर करना है वेरिएबल को, आई हैव सेट किया मुझे एज जो वेरिएबल है उसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। अभी हम उसको कंसोल करके देखते हैं हमारा एज का क्या होगा, राइट। तो अभी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नंबर है, तो इसका टाइप ऑफ एज क्या होगा, नंबर, राइट। उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसका क्या किया, लाइफ टाइप ऑफ एज कर दो, सॉरी नॉट टाइप ऑफ टाइप कर दो, बिकॉज हमने किस में स्टोर किया, उसका कन्वर्ट करके हमने एक वेरिएबल में टाइप में स्टोर किया, राइट। तो हम उसका टाइप में अभी देखेंगे इसका डेटा टाइप क्या, ओके सो नंबर था, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका भी कन्वर्जन क्या आएगा, स्ट्रिंग में आ गया, समझ रहे हो। तो हमने अभी देखा नंबर टू स्ट्रिंग एंड नंबर टू बुलियन। ओके सिमिलरली इफ आई राइट लेट adult equals to true, the person has been adult, right? Okay now I want to convert it into which one, let me first console this one, console.log adult, sorry type of adult, type of adult, fine, so it would be what it would be the boolean, right? Now I want to convert it into the string, तो सिमिलरली आपको क्या करना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, राइट, एंड इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ। ओके एंड आपको स्ट्रिंग में किसको कन्वर्ट करना है, आपके अडल्ट को, राइट। तो मैंने उसको अडल्ट में अभी समझे, अडल्ट में आपका बुलियन वैल्यू है, राइट, ट्रू, फिर उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ टाइप, और वो टाइप का हम देख रहे हैं कंसोल। ओके सो आपको पहले आएगा बुलियन फिर स्ट्रिंग। सिमिलर अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू विल बी राइटिंग
नंबर, तो आपका अभी बुलियन से किस में कन्वर्ट हो गया रहेगा, नंबर में. सी बुलियन एंड नंबर. यस. ओके. सो या, सबको समझा व्हाट आर डेटा टाइप एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट द वन डेटा टाइप इनटू अनदर. यस. यस Yes, गाइस. sir. या. Okay, so let us move ahead now and let us see the third one what it was. I guess the, here it is, conditional statement. Okay, so यहाँ पर conditional statement हम पहला देखने आ रहे हैं, that is if else conditional statement. Okay, so what do I mean by the conditional statement? Okay, so conditional statement वो statement होते हैं जहाँ पर आपको कुछ condition पर check करना होता है. Okay, so हम basic example देख के आपको मैं syntax बता दूंगा क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होगा. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट. सो इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ. यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कंडीशनल. आपको एक कंडीशनल चेक करना है क्या पर्सन इज बीन एलिजिबल फॉर वोट और नॉट. ओके, द पर्सन इज बीन एलिजिबल फॉर गिविंग वोट और नॉट. ओके, सो मैं क्या करूंगा, लेट एज इक्वल्स टू एक एज डिफाइन कर दूंगा. अब अगर मेरे को अभी आउटपुट करना है क्या पर्सन, जो पर्सन का एज है, राइट. ओके, इज ही एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, तो वहां पर मुझे कंडीशन चेक करना है, राइट. क्या इफ द पर्सन एज इज ग्रेटर देन 18, ओके, तब हम बोलेंगे क्या पर्सन कैन वोट, राइट. एंड इफ द पर्सन इज लेस देन 18, तब हम उसको बोलोगे, हम उसको क्या बोलेंगे कि यू कांट वोट इट, राइट. तो वहां पर हमें एक कंडीशन चेक करना है. ओके, तो ये कंडीशन हमें चेक करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होता है नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आपको लिखना है इफ. ओके, if I am saying if the age is greater than 18, okay, then मुझे क्या करना है, I will say in the console, if I will say in the console that the person can vote. Yes, if the person is not greater than 18, तब हमें कुछ करना है कि नहीं करना है, राइट. तो मैं बोल दूंगा else the person can't vote. Yes, तुम यहाँ पर हम पहला कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हैं, दैट इज द बेसिक वन, राइट. सो यहाँ पर हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि इफ द पर्सन इज एज इज ग्रेटर देन 18, so person can able to vote it, right. And if the person is not greater than 18, मतलब वो डायरेक्टली एल्स में जाएगा, मतलब अगर 18 के ऊपर नहीं है तो वो छोटा ही होगा, राइट. तो यहाँ पर हमें आपको कुछ कंडीशन नहीं देना पड़ता है. तो यहाँ पर आपको अगर सिंटेक्स देखना होगा तो इट वुड बी इफ, आपको यहाँ पर कंडीशन लिखना होता है जो आपको चेक करना है. ओके, और उसके अंदर आपको जो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ये आपको ब्लॉक में करना है. दिस इज व्हाट वी कैन से, वी कैन हैव दिस कॉल दिस वन टाइप ऑफ ब्लॉक, और उसको आपको कर्ली ब्रेसेस में ओपन एंड क्लोज करके आपको इसके अंदर का कुछ भी वर्क है वो करना होता है, राइट. सो मैंने क्या किया है, इफ, और ये कंडीशन है, राइट. एज इज ग्रेटर देन 18 एक कंडीशन है, हम उसको चेक कर रहे हैं. ओके, अगर ये ट्रू हुआ तब ये वाला आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, अगर वो फॉल्स हुआ तो एल्स कंडीशन में जाएगा और यहाँ पर ये वाला कंडीशन प्रिंट होगा. तो अभी हमारा बंदे का मतलब पर्सन एज इज हाउ मच 20, तो यहाँ पर आएगा वो और चेक करेगा इज एज इज ग्रेटर देन 18. यस इट इज, दैट इज हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये ट्रू होने पे यहाँ पर ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ रहे हो, तो ये दोनों में से एक ही कंडीशन होगा. अगर ये होगा तो वो नहीं होगा. समझो, अगर ये मतलब अगर ऊपर का नहीं हुआ तो ये तो होना ही है लास्ट में. ओके, बट अगर पहला वाला ही हो गया तो वो नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ रहे हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट का लिया कि अगर ये करना है या तो मुझे नहीं करना. ओके. ओके, द स्टूडेंट हैव टू गिव द एग्जामिनेशन और एल्स द स्टूडेंट विल फेल. ओके, तो स्टूडेंट के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको एग्जाम देना ही होगा. ओके, अगर बंदे ने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो जाएगा डायरेक्टली. ओके, सो सिमिलरली आप यहाँ पर चेक करो एक कंडीशन. ओके, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, तो पर्सन कैन वोट. अगर वो उससे छोटा है तो एल्स में जाएगा और पर्सन कांट वोट. समझ रहे हो, दिस इज वन कंडीशनल स्टेटमेंट वी हैव यूज्ड. ओके, लेट अस गो एंड सी कि इसका आउटपुट क्या आएगा. ओके, सो इट वुड बी ओवर हियर, राइट. सो इट पर्सन कैन वोट, रीजन बिहाइंड दिस इज जैसा मैंने आपको बोला है, एज कितना है पर्सन का 20. इफ आई डू इट टू 17, right, now the person can't vote, right, because it's less than 18. so क्या हुआ है, person can't vote. कैसा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर देखेगा एज इज ग्रेटर देन 18, 17 ग्रेटर है कि 18 से नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं.
वो डायरेक्टली बाहर आके एल्स कंडीशन में जाके इसको प्रिंट कर देगा। यस, कंडीशनल स्टेटमेंट समझा सबको? यस गाइस, सॉरी, यस, सबको समझा? अमेजिंग, फाइन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी। हम लूप्स आज नहीं देखेंगे, फाइन, विल बी सीइंग द ऑपरेटर्स। ओके, सो अभी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेट्स गो एंड सी वन बाय वन। फाइन, सो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, लेट्स गो एंड सी इट फर्स्ट। ओके, सो हमारे पास ऑपरेटर्स में कौन से होते हैं? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको किससे डिनोट करते हैं? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। देन वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसको कैसे आप डिनोट करते हो? आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब नॉर्मल वाला जो आप प्लस करते हो, राइट? प्लस देन आप माइनस करते हो, राइट? आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप डिवाइड करते हो। ओके, सो ये सब आपका नॉर्मल ऑपरेटर का आप बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, समझ रहे हो? फिर आपका रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर जो हमने अभी आपको कुछ रिलेशन के लिए चेक करने के लिए यूज करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, देन आपके पास होते ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? आप कुछ लॉजिक चेक करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड और नॉट। ओके, ये तीन आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अब हम एग्जांपल करेंगे इसका सब, डोंट वरी। ओके, देन विल बी डन फॉर आवर डे, फाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? आपका असाइन करते हो, ओके, तो आप इक्वल्स टू करके असाइन करते हो, लेट ए इक्वल्स टू 20, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो। ओके, प्लस इक्वल्स टू आता है, देन वी हैव माइनस इक्वल्स टू, ये शॉर्टकट है, दिस इक्वल्स टू, ओके, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, ये सब है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, नाउ विल बी सीइंग वन बाय वन। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। ओके ना, इसके बाद हमारे पास और एक आता है कंडीशनल ऑपरेटर, उसको हम यूनिनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, सॉरी, नॉट यूनिनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, सो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है ऐसा, मतलब अगर आपको इफ एल्स कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में आपको देखना होगा तो आप उसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिखोगे, कंडीशन लिखना है फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ऐसा करके आपको यहाँ पर लिखोगे प्रिंट वन, अगर आपका ट्रू हुआ ना तो ये प्रिंट करना है, और एल्स प्रिंट टू। ओके, सो लेट्स गो एंड सी वन बाय वन। तो हम पहला देखो, ये इतने सब, कौन से भी लैंग्वेज में जाओ, कौन से भी आप जावा में जाओ, कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, इतने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं टोटल। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो जैसा आपको मैं बताया, हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, फॉर दैट कंसेप्ट मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पहला सिखा दिया। ओके, आई विल से लेट num1 equals to 10 and let num2 equals to 20, राइट? एंड इसको हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे, सॉरी, नॉट कंडीशनल ऑपरेटर, सो सॉरी, माय बैड, अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई विल से आई वांट टू डू num1 plus num2। ओके, सो प्लस में आपको क्या बोला अरिथमेटिक ऑपरेटर में? ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, इसमें कौन से कितने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से सिंबल्स होते हैं? इट कैन बी प्लस, ओके, बहुत सारे होते हैं, राइट? माइनस, सॉरी, माइनस, देन वी हैव दिस, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक्स नहीं यूज करते हो, दैट इज द एस्टेरिस्क सिंबल आप यूज करते हो। देन वी हैव दिस डिवीजन, फिर आपके पास आता है मॉड्यूलो, फिर इसके बाद आपके पास आता है डबल टू भी आता है। ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं। क्या होते हैं ये सब में आप देखते हैं, तो प्लस आपको पता है क्या होगा, दिस एडिशन ऑफ टू नंबर। हम करते हैं माइनस, हम करते हैं मल्टीप्लाई के लिए आप एक्स नहीं यूज करोगे, आप स्टार वाला सिंबल यूज करते हो, समझ रहे हो? देन आपके पास होता है डिवीजन, फिर आपके पास आता है दिस सिंबल नोन एज परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूंगा, समझ रहे हो? फिर इसके बाद आपका आता है, ये आप सिंबल यूज करोगे तो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे आपका 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, तो आप उसको स्क्वायर, मतलब स्क्वायर भी निकाल सकते हो, क्यूब भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, so I will say, see like this, if I say num1 this,
और num 2 मतलब अभी आपको समझो 10 टू द पावर ऐसा होगा। मतलब आप ये करते हैं ना, अभी मैं अभी आपको बेसिक एग्जांपल के लिए क्या करता है, num 1 रेज टू 2, तो इसका 10 का आउटपुट क्या मतलब स्क्वायर क्या होता है, फाइन इट इज 100 राइट। ओके 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 होगा। तो रेज टू 2, रेज टू ऑपरेशन, अगर रेज टू आपको करना है तो आप डायरेक्टली डबल इंटू करोगे, उसके बाद आपको कौन सा करना है, 2 करोगे तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा उसका। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर निकालो, 10 का स्क्वायर कितना है तो 100 है। ओके तो इसका आउटपुट क्या आएगा, प्लस क्या आएगा 30 राइट। देन हमारे पास क्या है, 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 राइट। देन मल्टीप्लीकेशन में अगर 10 सम 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 200 राइट। अगर मैं क्या करूंगा, नम 1 10 डिवाइड बाय 20 करूंगा तो हमें क्या आएगा, इट वुड बी 0.5 राइट। ओके 0.5 आया। यहाँ पर ना मैं आपको ये वाला ऑपरेटर समझाऊंगा। ओके दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, तो मैं आपको समझाऊंगा ये परसेंटेज सिंबल से हमें क्या आउटपुट मिलता है। और ये आपको बोला रेज टू ऑपरेशन के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं। ओके तो इसके लिए हम अभी आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। सो इट्स ओवर हियर 30 माइनस 10 200 0.5 है 100 राइट। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो इसके आगे आप 3 लिखोगे। तो नम 1 में क्या स्टोर है, 10 रेज टू 3, तो 10 रेज टू 3 इज 1000। ओके तो आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आपके चॉइस है। ओके तो आपको रेज टू पावर यूज करना है तो आप डबल इंप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड्यूलर सिंबल क्या है, ये सब तो आपको पता ही है राइट। यहाँ पर एक नया है ऑपरेटर, डेट इज दिस सिंबल मॉड्यूलो। ओके इसको हम परसेंटेज का हम बुलाते हैं मॉड्यूलो। ओके अभी आप देखो, जब आप डिवाइड करते हो, जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, ओके व्हेन आई डू 2, मतलब अगर मैं आपको लिखना होगा राइट, आपको डिवाइड करना होगा 10। ओके अगर आपको 10 डिवाइड करना होगा 2 से, तो मैं क्या करूँगा, 2 5 जा 10 राइट, नीचे ले लो। ओके सो इसका आउटपुट क्या आएगा, इट वुड बी 0 0 राइट। तो हमें जब डिवाइड करते हो राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे 10 डिवाइड बाय 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हम हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन बुलाते हैं, तो सबको पता है ये बेसिक है, इसको हम क्वेश्चन बुलाते हैं राइट। व्हाट्स रॉन्ग हियर इसको हम क्या बुलाते हैं, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, या तो आप क्वेश्चन, जे आपका नीचे का आता है इसको आप क्या बुलाते हो, रिमाइंडर राइट। एंड दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर राइट, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड फाइन। तो जब मैं 10 डिवाइड बाई 2 करेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, ओके मुझे मिलता है 5 राइट। बट जब आप क्या करोगे, आप करोगे दिस 10 मॉड्यूलो 2, तब आपका आउटपुट मिलेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है 0। ओके जब आपको रिमाइंडर आपका आंसर चाहिए होगा तब आप करोगे मॉड्यूलो। ओके वेरे जब आप उसका क्वेश्चन चाहिए होगा तब आप क्या करोगे, उसका नॉर्मल दिस वन, डबल ये सिंगल ही यूज करोगे। ओके डोंट यूज डबल वन, बिकॉज डबल वन आप यूज करोगे तो वो आपको चेकिंग के लिए यूज करना होता है। ओके इफ यू वांट टू चेक समथिंग तब आप कौन सा यूज करोगे, डबल वाला। ओके चेकिंग मतलब आपको अगर कुछ चेक करना है, क्या इज ए इक्वल्स टू बी, ओके ए इक्वल्स टू बी, तब आपको कौन सा यूज करना है तब आपको यूज करना होगा दिस डबल इक्वल्स टू। समझ रहे हो, तो इसका आंसर है 5। ओके तो नॉर्मल डिवीजन से आपको क्वेश्चन वाला आंसर मिलता है, समझ रहे हो। बट आप जब मॉड्यूल यूज करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, रिमाइंडर। सो लेट्स गो एंड सी। ओके सो इधर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जब मैं अभी एग्जांपल लिख दिया देख लिया था वही वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके मैं बोलता हूँ 10 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिमाइंडर क्या है, सबको पता है, दैट इज 0 राइट। लेट्स गो एंड सी द रिमाइंड आउटपुट या सी, हमारे पास आया है 0। समझ रहे हो, अगर मैं 10 ये करूंगा, दैट इज 10 डिवाइड बाय नॉर्मल दिस 10 डिवाइड बाय 2, तो हमें क्या आएगा आउटपुट 5। ये तो सबको पता ही है, नॉर्मल डिवीजन में हमें क्वेश्चन आंसर मिलता है। तो 5 आया, और जब मेरे को कोई रिमाइंडर चाहिए था तो मैं मॉड्यूलर निकाल के उसका रिमाइंडर ले लिया। समझ रहे हो, तो एरिथमेटिक्स ऑपरेटर सबको समझा है, यस गाइस बेसिक वन जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, यस। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द दिस वन, दैट इज द कौन सा देखते हैं,
जो आपको इजी गिरेगा भी समझने में, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर में हम रिलेशनल देखते हैं। ओके, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन से होते हैं लिस्ट डाउन करते हैं। ओके, why is my device working so slow? Relation में it can be greater than, it can be less than, it can be greater than equals to, it can be less than equals to, less than equals to, it can be equals to, right? तो मैं ये सब आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। ओके, नाउ आई बी सेइंग व्हाट इज इट सो, ओके आई एम बी सेइंग console.log num1 greater than num2, क्या आएगा आउटपुट? लेट्स गो एंड सी इट। यहाँ पर आपको आंसर आएगा इधर इन ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर चेक करेगा क्या इज num1 ग्रेटर देन num2, मतलब आपका 10 ग्रेटर देन 20 है क्या, नहीं है, राइट? तो वो वहां पर हमें आंसर आएगा फॉल्स। चलो देख लेते हैं, आया है फॉल्स, राइट? सो इन दिस वे यू कैन चेक दिस। ओके, सिमिलरली आप दूसरा भी चेक कर सकते हो अपना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू है, भले ही वो ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू, दोनों में से एक चेक करेगा, अगर दोनों में से एक है तो सेटिस्फाई करके आंसर हमें ट्रू दे देगा, समझ रहे हो? और एक है दैट इज इक्वल्स टू। तो अगर दो नंबर का आपको चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं, तब आप उसको डबल इक्वल्स टू डालते हो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, 10 10 दे देता हूँ, दोनों का नंबर सेम करता हूँ। तो इस 10 ग्रेटर देन 10, तो इधर आएगा फॉल्स बिकॉज दोनों इक्वल है। इस 10 मतलब जो नम 1 में 10 है, नम 2 में इस लेस देन 10, तो यहाँ पर भी आएगा हमारा फॉल्स, समझ रहे हो? ओके, इस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर तो नहीं बट इक्वल्स टू है ना, तो इट विल बी ट्रू। वापस इस 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस तो नहीं है बट इक्वल्स टू है ना, तो ट्रू आएगा, राइट? वेरेज अगर मैं बोलूंगा इज नम इक्वल्स टू डालेगा, तो आपका क्या हो रहा है, सिंगल इक्वल्स टू कर रहे हो तो आप असाइन कर रहे हो, राइट? कुछ उसका वैल्यू, बट आप डबल इक्वल्स टू यूज करोगे तो आप उसको चेक कर रहे हो, समझ रहे हो? ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, इज नम 1 इक्वल्स टू नम 2, मतलब इज 10 इक्वल्स टू 10, यस इट इज, तो हमें आएगा ट्रू। तो पहला दो फॉल्स आएगा और तीन ट्रू आएगा। लेट्स गो एंड सी द आउटपुट नाउ, पहला दो फॉल्स एंड तीन ट्रू। यस, तो रिलेशनल ऑपरेटर सबको समझा है गाइस? यस, yeah, great, amazing, fine, we have seen the relational operator now। हम हमारा चेक करते हैं, लॉजिकल करें क्या क्या करें, रिलेशन दिस, असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये पहला आपने देख ही लिया, दिस वन, इसको हम कमेंट डाउन करते हैं अभी तक, और इधर से हम असाइन करते हैं। अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर, ओके, आई हैव सेड दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला क्या होता है, इक्वल्स टू, असाइन करना है आपको वैल्यू, फिर प्लस इक्वल्स टू, देन माइनस इक्वल्स टू, देन वी हैव डिवीजन इक्वल्स टू, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू। समझ रहे हो इसका क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू आपको पता ही है, लेट num1 इक्वल्स टू 10, तो इधर इक्वल्स टू है मतलब असाइन कर रहे हो वैल्यू, राइट? तो दिस इज वन असाइनमेंट ऑपरेटर। इफ आई से num1 प्लस दिस प्लस इक्वल्स टू 20, तो आपका अभी क्या होगा, लेट्स गो एंड सी द आउटपुट। I will say I want to see the num1 में num1 राइट, सॉरी, num1 में क्या स्टोर है। ओके, सो ये अगर आपको देखने गया तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है। ओके, ये कैसा परफॉर्म होगा, हम num1 को अपडेट करें तो इट वुड बी num1 इक्वल्स टू num1 प्लस 20, समझ रहे हो? यस, सो यहाँ पर अगर मुझे शॉर्टकट में उसको ऐड करना है, ओके, सो आई विल बी सेइंग सी num1 प्लस इक्वल्स टू 20, तो मैं जो दो बार num1 लिख रहा था उसको मैं वन टाइम ही लिखूंगा, और ये आपको शॉर्टकट है। ओके, बट आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली नॉर्मली भी लिख सकते हो, num1 को आप प्लस 20 कर दोगे, num1 को अपडेट कर रहे हो। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, num1 जो आपका 10 था उसको अपडेट करके अभी आप 10 प्लस और 20 ऐड कर रहे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा अभी, 10 प्लस 20 दैट इज 30। लेट्स गो एंड सी इट, इट्स 30, राइट? ओके, सो हियर यू आर अपडेटिंग इट। ओके, so आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, समझ रहे हो? सो वो ऑपरेशन कैसा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ही, समझ रहे हो? ओके,
सो आई कैन से माइनस हो गया। सो अभी क्या होगा, num1 इक्वल्स टू num1 माइनस 20। ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट भी करता जाता हूँ, राइट, तो आपको समझ में भी आएगा। ओके, सो ये कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, और दो ये कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन वाली कर देता हूँ। तो num1 इक्वल्स टू num1, जो आपको पहले का ये num1 ये जो इधर num1 मिला रहेगा ना उसको 20 करेगा, जो इधर num1 मिला रहेगा उसको माइनस 20 करेगा। समझ रहे हो? तो वो अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है। आप वो मत समझो कि यहाँ पर 10 है तो 10 को ही लेके, वो अपडेट भी हो रहा है, उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं ना, तो वैसा वर्क हो रहा है। समझ रहे हो? यस, तो आई हैव सेड क्या, देखो जब प्लस इक्वल्स टू होगा तो उसका ऑपरेटर कैसा, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस 20। तो ये आपका शॉर्टकट है, अगर आपको डायरेक्टली अपडेट करना है तो आप num1 इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 20 कर सकते हो। ओके, अगर उसको माइनस करना है तो माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 20। ओके, आप इसका नंबर कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 20 करना है। आप 100 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 100 मतलब 50 कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ओके, सो लेट्स गो एंड सी द आउटपुट। 30, 10, 210. Let's go and see it. 10 plus 20, output is 30. 30 आया, 30 minus 20, answer is 10. 10 into 20, 200, right? That is 200. Okay, 200 divided by 20 is absolutely 10. तो आएगा 30, 10, 210. तो वही आउटपुट आया 30, 10, 210. So this is the shortcut where you can use to update our elements. Yes, समझा गाइस दिस असाइनमेंट ऑपरेटर सबको? यस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वैसे ही लिखने, बट आप वैसा भी लिख सकते हो तो आपका कोडिंग थोड़ा, मतलब आपका दिस डेवलपमेंट स्पीड विल बी इंक्रीज। यस, हाँ, फाइन, लेट्स मूव अहेड। फटाफट से हम, हमारा लास्ट है आई गेस, राइट? ओके, इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो सबसे इजी है, आपको अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझना ही है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो अगर प्लस 1 नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते यूज कर सकते हो, मतलब +1 -1, अगर आपको एक ही वैल्यू से माइनस प्लस करने हैं वैल्यू को। ओके, सो इसका सिंटैक्स होता है प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। ओके, सो आई हैव सेड लेट a इक्वल्स टू 20। नाउ मेरे को क्या करना है, a को प्लस करना, मेरे को +1 से करना, मतलब आपको a इक्वल्स टू a+1 नहीं लिखा है, पर मेरे को उसको सिर्फ +1 से, मतलब उसको 1 से बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा a प्लस प्लस। ओके, मैं लिखूंगा console.log a। ओके, तो अभी आपका a का वैल्यू होगा 21, बिकॉज मैं उसको प्लस प्लस किया तो उसका वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। देखो 121 आ गया। ओके, अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूंगा तो माइनस, मतलब 1 से माइनस हो जाएगा, तो 19 आ गया। तो दिस इज नथिंग बट यह इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपको लूप्स में यूज होता है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा बचा है, आई गेस दिस वन, राइट? असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल। लॉजिकल देखते हैं। ओके, आई विल से लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास होता है एंड, देन होता है पाइप सिंबल, और एंड आपके पास होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट। ओके, ना इफ आई से console.log, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ अभी। ओके, मैं बोलता हूँ 5 ग्रेटर देन 6 एंड लिखूंगा 6 ग्रेटर देन 10। सॉरी, व्हाट्स रॉन्ग। ओके, सो पहला चेक करेगा इस 5 ग्रेटर देन 6, तो इसका है आंसर है फॉल्स, राइट? फिर वो चेक करेगा एंड देन इज 6 ग्रेटर देन 10, ये भी है फॉल्स। ओके, सो अगर हमारे दोनों कंडीशन फॉल्स है, ओके, मतलब यहाँ पर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आंसर आएगा फॉल्स। ओके, सो इफ आई डू सी, अगर हमारे पास है, अगर दोनों ट्रू करते हैं 15 और 16, तो अभी हमारा हो गया दोनों ट्रू। अगर आपका दोनों ट्रू है तो आपका ट्रू आएगा। ओके, इसका आपका एक ये होता है, मतलब मैं क्या बोला, इफ बोथ आर ट्रू, अगर आपके पास ट्रू ट्रू है तो आपका आउटपुट भी आएगा ट्रू। ओके, वेरएज अगर आपका फॉल्स है और दूसरा है ट्रू, तब भी आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, देन आपके पास है ट्रू,
देन आपके पास है फॉल्स, देन तो आपका आएगा फॉल्स, मतलब आपका अगर सब कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो आपका आएगा फॉल्स, कुछ भी हो दो, अगर एक भी फॉल्स है तो आपका कंडीशन ये आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा, समझ रहे हो? ओके, सो लेट मी कमेंट डाउन दिस। तो अभी क्या हो रहा है हमारा, 15 ग्रेटर देन 6 ट्रू है और 16 ग्रेटर देन 10 ट्रू है, तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू, दैट इज ओवर हियर, ट्रू। एक को हम फॉल्स कर देते हैं अभी तक। ओके, मैं क्या करता हूँ, 5 ग्रेटर देन 6 एक है फॉल्स है, बट ये ट्रू है, राइट? तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है हमारा, फॉल्स ही होता है, तो आउटपुट आएगा फॉल्स, फॉल्स, राइट? ओके, एक अभी आपको अगर मोर देन वन कंडीशन चेक करना होता है, और अब वहां पर आपको चाहिए, देखो जब आप लॉग इन करते हो तब आपको क्या चाहिए, क्या बंदे का मतलब यूजर का जीमेल भी सही होना चाहिए, वेरेस पासवर्ड भी सही होना चाहिए, तो आपको दोनों कंडीशन चेक करना होता है ना, तो मैं क्या करूंगा, तब यहाँ पर एंड ऑपरेशन करेगा, जहां पर मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम मैं इसको चेक करूंगा कि क्या गलत है, और उसको वो अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट दे दूंगा, right? So this is the example where we can use the this and or logical operators. Okay, so end में आपको समझ ही गया कि क्या होता है। Now I will show you और में क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके इधर और करता हूँ, और का टेबल क्या होता है बता देता हूँ। So if I use और, okay, so ये दो पाइप सिंबल होता है और, ओके यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इसको हटा देता हूँ, अगर यहाँ पर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है ना, ओके अगर उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिला तो वो ट्रू कर देगा, ओके समझ रहे हो? तो उसको एक भी कंडीशन ट्रू मिला ना वो ट्रू कर देता है, ऐसा नहीं कि उसको सभी चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखो ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, ओके उसको कौन सा भी मतलब एक भी ट्रू मिला ना तो ट्रू कर देता, समझ रहे हो? ओके, अगर दोनों ट्रू मिला तो वेल एंड गुड, ओके सो ट्रू ही कर देगा, बट अगर दोनों फॉल्स रहेगा ना तो वो क्या करेगा, वहां पर क्या करेगा, ए भी फॉल्स है और ए भी फॉल्स है, तब उसको क्या आउटपुट रहेगा फॉल्स, समझ रहे हो? तो लेट्स गो एंड सी, सो हियर द आउटपुट इज फॉल्स, राइट? एंड अगर आपको थर्ड वन कौन सा ऑपरेटर है, दिस वन, राइट? दैट इज नॉट वन। अगर आपको उसका कंडीशनल रिवर्स करना है, ओके इफ आई से कंसोल डॉट लॉग, ओके आई विल से नॉट ऑफ दिस 5 ग्रेटर देन 6, ओके सो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो इज 5 ग्रेटर देन 6 नो फॉल्स, बट फॉल्स का अगर मैं उसका, देखो इसका टेबल क्या होता है, अगर आपका ट्रू है और आपने नॉट का यूज किया तो वो फॉल्स देगा, मतलब उसका उल्टा करके देगा, ओके अगर मैं बोलूंगा मेरा है आउटपुट फॉल्स, बट मेरे को उसका रिवर्स करना है, मेरे को उसका रिवर्स करना है, उल्टा करना है ट्रू, तो आप उसको बोलोगे नॉट कंडीशन, जब आप करोगे तो आप उसका कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। तो आपका भी 5 ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं फॉल्स है, बट उसको मैं क्या करना है, मेरे को ट्रू बताना है, तब मैं लिखूंगा नॉट ऑफ 5 ग्रेटर देन 6, तो आपका आ गया ट्रू, ओके अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा इज 15 ग्रेटर देन 16, यस इट इज ट्रू है, बट उसका मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उल्टा कर रहा हूँ, तो वो आएगा फॉल्स, राइट? तो यहाँ पर आपका आ गया फॉल्स, yes, so this way we can make use of this which operator, that is the logical operator. Hope you guys understand it well. ये बेसिक सिंटेक्स है, राइट? इसका हम इम्प्लीमेंटेशन आगे देखेंगे, डोंट वरी। यस, सबको समझा है ये लॉजिकल ऑपरेटर गाइस? यस, या अमेजिंग, फाइन। लास्ट वन होगा आई गेस फॉर द डे, दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। सिंटेक्स आपको बता ही दिया हो कंडीशनल ऑपरेटर का। ये क्या होता है, शॉर्टकट टू यूज इफ एल कंडीशनल वाला, ओके इसका आपका अगर शॉर्टकट मतलब आपको शॉर्टकट में देखना है तो आप क्या करोगे, पहले आपको कंडीशन लिखना होता है, ओके फिर उसके बाद आपको अगर ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करना है, फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करना है, वो आपको बताना होता है। तो ये आपका, अगर एक लाइन में आपको इफ एल कंडीशन चेक करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 18, ओके अगर मैं यहाँ पर अभी पहला क्या, इसका सिंटेक्स क्या है, पहला कंडीशन लिखना रहता है, जैसे आप इफ एल्स कंडीशन में करते हो ना, तो यहाँ पर आप एक ही लाइन में इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मैं पहला क्या लिख दिया हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 18, एज ऊपर की तरफ ये नहीं किया, समझ, ग्रेट, फाइन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा इज, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे, इज एज ग्रेटर देन 18, ओके ये कंडीशन हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन, इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क दे रहे, तो ये कंडीशन चेक करने के बाद मेरे को क्या करना है, तो आई विल से इफ इट इज ग्रेटर देन 18, व्हाट्स रॉन्ग हियर मैन,
Okay, if it is greater than 18, I will say person can vote, right? अगर ये false है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ. Wow, I got this error over here. That is this one. else मैं बोलूंगा person, मैं इसको बंद कर देता हूँ. ओके, सिंटैक्स आपको पहला समझ ही जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी गाइस. ओके, इसको स्पेसिंग दे दो पहला अच्छे से. पर्सन कांट वोट. चलो देखते हैं. पहले आपको कंडीशन लिखना होता है, जैसे इफ कंडीशन में तो मैंने लिख दिया इज एज ग्रेटर देन 18. अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा. ओके, दोनों में से एक होगा. तो अगर ट्रू है तो ये होगा. ओके, यहाँ पर हम 19 करते हैं बिकॉज 18 ग्रेटर देन 18 नहीं, इक्वल्स टू है तो हमें इक्वल्स टू भी डालना होगा, बट हम वो नहीं कर रहे. इज 19 ग्रेटर देन 18? यस, तो हमें प्रिंट होगा पर्सन कैन वोट. चलो देख लेते हैं. पर्सन कैन वोट, राइट. अगर मैं इसको करूंगा 10, राइट, तो 10 ग्रेटर देन 18 तो फॉल्स है, तो डायरेक्टली वो यहाँ पर जाके इसको प्रिंट करेगा. जैसे आपका इफ एल्स कंडीशन काम करता है ना, तो आपको अगर कुछ एक कंडीशन चेक करना है तो ऐसा इफ एल्स कंडीशन शॉर्ट में लिखना है तो आप डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकते हो उसको, राइट. तो दिस इज द शॉर्टकट वी कैन यूज. सी पर्सन कांट वोट नाउ. यस, सो या वी हैव लर्न दिस वन. इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया, फिर लॉजिकल देखा, असाइनमेंट देखा एंड कंडीशनल देखा. यस, एंड जो हमने सोचा था आज क्या क्या कंप्लीट करना है हमने देख लिया. ओके, दैट इज हाउ कैन वी इंक्लूड जावास्क्रिप्ट, देन व्हाट आर वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स. कल के लेक्चर में हम देखेंगे लूप्स, फंक्शंस एंड एरे. यस, ये तीन चीज देखेंगे. ओके, सो होप सो यू गाइस हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव कवर्ड टुडे. यस, सबको अच्छे से समझ में आया दैट वी हैव कवर्ड इन अ टुडेस क्लास. यस. या, great. Fine, so let me stop